Yes, we were at which question? Good morning everyone. We were at which question? 4.3 का fourth question हो गया था ना, I guess. 4.3 का fourth question was done, if I'm not wrong. है ना? 4.4 is going on. 4.4. Okay. Exercise 4.4. क्या बोला उन्होंने? Demand function of a commodity at price P is given as demand function of commodity of price function. लास्ट क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूला रिवाइज करके दिए थे तुम लोगों को, आई गेस रिवीजन वाला सेक्शन में. ये कुछ फॉर्मूला की लिस्ट बना के दी थी मैंने तुम लोगों को. हाँ, ये वाले फॉर्मूला. आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस. ओके, तो ये था तुम्हारा फॉर्मूला लिस्ट. अब उन्होंने क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा, 1 लेते हैं. डिमांड फंक्शन इज गिवन टू यू. क्या दिया हुआ है डिमांड फंक्शन में? D is equal to what? 40 minus 5p upon 8. और हमें चेक करना है whether it is increasing or decreasing. हमें चेक करना है whether it is increasing or decreasing. चलो, try to solve it. Try to tell me whether it is increasing or decreasing. क्या करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्राइस. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस P, है ना? तो क्या करेंगे फिर? dt by dp is equal to differentiation of 40 minus 5p by 8 with dp. So differentiation of 40 is 0 and differentiation of 5p by 8 is what? Minus 5 by 8. Okay, तो क्या है फिर ये dd by dp? लेस देन 0 ना? इट इज व्हाट? लेस देन 0. तो अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? डिक्रीजिंग. अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है तो इट इज व्हाट? डिक्रीजिंग. ओके, देयरफॉर डिमांड इट्स डिक्रीजिंग. ऑलराइट, ओके, डिमांड इज डिक्रीजिंग. अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है तो डिमांड इज व्हाट? डिक्रीजिंग. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें देखो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेती हूँ. टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स आर्टिकल्स. टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर एक्स आर्टिकल्स is given to you as C is equal to 100 plus 600x minus 3x square. Find the values of x for which total cost is decreasing. Total cost should be decreasing. Okay, find what? X values. Find x for which total cost is decreasing.
Yes, got the value of x. Total cost function is decreasing. What we want? We want the cost function to be decreasing. What should I do? Differentiate. Okay, differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x. तो क्या हो जाएगा? dc by dx is equal to differentiation of 100 plus 600x minus 3x square with dx. Okay, 100 plus 600x minus 3x square with dx. Differentiation of 100, 0. Differentiation of 600x, 600. Minus differentiation of 3x square minus 6x. है ना? Any doubt in this? Differentiation of 100 is 0. Differentiation of 600x is 600. Differentiation of minus 3x square is minus 6x. कैसे समझ में आया? Minus 3 को बाहर निकालो, x square का differentiation 2x. Minus 3 into 2 is what? Minus 6x. Okay. तो उन्होंने क्या बोला है? Total cost function is decreasing. तो cost function is decreasing. Total cost function is decreasing. That means dc by dx is less than 0. है ना? तो dc by dx क्या है फिर? 600 minus 6x is less than 0. तो 600 less than 6x. So x greater than 600 upon 6. So x greater than 100. X greater than what? 100. Okay. So total cost is decreasing if x is greater than 100. Okay, x is greater than 100. Any doubt in this? देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई इश्यूज हो तो बताओ. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अपन. देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ. डिक्रीजिंग है, लेस देन 0. इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0. ओके, डिक्रीजिंग है, लेस देन 0. इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0. नथिंग एल्स. इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. चलो बढ़े आगे फिर. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5. For manufacturing X units, labor cost is given to you 150 minus 54x. Processing cost is given to you. Processing cost कितना दिया हुआ है? x square. Price for each unit is P is equal to 10800 minus 4x square. Find value of x. For which total cost is decreasing. चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं. टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. ट्राई टू सॉल्व इट. टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट क्या होगा? लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट. ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट.
नहीं नहीं नहीं, 1.5 घंटे का है रे, 1.5 घंटे का है ना रिविजन अपना। कार्तिक ऑफलाइन कब से होगा यार, मुझे खुद पता नहीं है, पता ही नहीं क्या सीन है। ऑफलाइन होगा, जरा मुश्किल लग रहा है मुझे अभी तो। चलो टोटल कॉस्ट कितना हो गया फिर बताओ। टोटल कॉस्ट इज व्हाट, लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट इज व्हाट, 150 minus 54x. Processing cost is what, x squared. Okay, तो total cost is decreasing ना, total cost is decreasing। तो dc by dx हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dc by dx is equal to differentiation of 150 minus 54x plus x square with dx। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, यस, dc by dx 150 का डिफरेंशिएशन 0, 54x का डिफरेंशिएशन 54, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग मींस dc by dx इज लेस देन 0। तो dc by dx कितना है, -54 प्लस 2x इज लेस देन 0। तो -54 को शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 2x लेस देन 54, x इज व्हाट, लेस देन 54 अपॉन 2, तो x इज लेस देन 27। तो यस, क्या हो गया इसका आंसर, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर व्हाट, फॉर x लेस देन 27। देख लो एक बार, टोटल कॉस्ट में कुछ डाउट है, देख लो एक बार। टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट होता क्या है, लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, और डिक्रीजिंग पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद वो डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन टू यू दैट इट इज डिक्रीजिंग। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस। कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x ग्रेटर देन और लेस देन कोई भी आ सकता ना। हाँ, वो इस पे यहाँ पे थोड़ी ना डिपेंड करता है कि लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है कि इफ योर इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग दिस, ये कुछ भी आने दो, यहाँ पे हमें कोई, यहाँ पे कुछ रूल नहीं है कि x लेस देन ही आना चाहिए, x ग्रेटर देन ही आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, x पे कोई भी रूल नहीं है। ओके, रूल कहाँ पे है, यहाँ पे है, डिफरेंशिएशन पे है। ठीक है, रूल कहाँ पे है, डिफरेंशिएशन पे है, बी। अब क्या बोला है, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो आर क्या होता है फिर, व्हाट इज आर, आर इज, रेवेन्यू इज व्हाट, प्राइस इनटू डिमांड, और डिमांड क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू डिमांड, और डिमांड क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो P इंटू एक्स। सही है ना। रेवेन्यू क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्राइस इंटू डिमांड, और डिमांड क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, तो यस, R इज इक्वल टू 10800 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। चलो बताओ जल्दी फास्ट। रेवेन्यू इंक्रीजिंग चाहिए अपन को, तो पहले रेवेन्यू का फंक्शन बनाओ। रेवेन्यू का फंक्शन कैसे बनेगा, प्राइस इंटू डिमांड है ना, प्राइस इंटू डिमांड, और डिमांड क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ
यूनिट्स। आज थोड़े बोर हो रहे हैं क्या सब लोग? हाँ, अपूर्वा, आर यू अटेंडिंग? अपूर्वा अटेंड नहीं कर रही शायद से, नहीं तो अब तक डाउट्स आ जाते उसके। उसको एप्लीकेशन अच्छा अटेंड कर रही है। ओह नाइस। मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आगे का ही पार्ट चाहिए था ना। तुरंत उसी दिन बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, इट इज वेरी बेनिफिशियल। तुरंत उसी दिन बचे हुए सारे क्वेश्चंस जो मैंने नहीं लिए हैं रिवीजन में, वो सारे उसी दिन सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। हाँ, अदरवाइज फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। और ज्यादातर अपन एक्सरसाइज में ओवरऑल कम क्वेश्चंस है, तो अपन सॉल्व कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट सब कुछ। अच्छा, अभी कितने अपूर्वा है? अभी तो नहीं है यार कोई। अभी एक ही अपूर्वा है। अपूर्वा फेमस हो गई। 12 लोगों ने लॉगिन किया था अपूर्वा के नाम से। किसने किसने उस लिंक पे जाके अटेंड किया था लेक्चर? ऑनेस्टली बताओ, कुछ बोलेंगे नहीं कुछ, अभी उसमें क्या डांटने का, बट स्टिल आई एम आस्किंग, कितने लोगों ने उधर उसी, अच्छा तेजस ने किया था। और ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं, ऐसे कुछ उसमें गलत ऐसे कुछ नहीं है, जस्ट आस्किंग। हाँ, तो कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया था, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। सर ने ग्रुप पे लिंक जो डाला था, जिस वजह से जहां से पूरा मतलब एक्सेस कर लिया तुम लोगों ने लेक्चर, उस लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया था? तेजस ने देखो ऑनेस्टली बताया। चलो ठीक है। So r is equal to what? 10800x minus 4x cube. Revenue is increasing, मतलब डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dr बाई dx इज इक्वल टू 10800 माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके, तो क्या आता फिर? dr बाई dx इज इक्वल टू 10800 माइनस 12x स्क्वायर। ओके, 12x स्क्वायर। तो इट इज व्हाट? इंक्रीजिंग ना। Revenue is increasing, therefore dr by dx is greater than 0. So 10800 minus 12x square greater than 0. So 10800 greater than 12x square. ओके, और हमेशा मैंने बताया था जिसके सामने माइनस है उसी को शिफ्ट करो, जिसके सामने माइनस है उसी को शिफ्ट करो, अदरवाइज योर आंसर विल गो रॉन्ग। ओके, जिसके सामने माइनस है उसी को शिफ्ट करो। तो क्या हो जाएगा फिर? 10800 अपॉन 12 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, सो 900 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा फिर? यस, 900 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 900, ये उसका मीनिंग हो गया है ना। एक्स स्क्वायर लेस देन 900, सो एक्स इज लेस देन 30। अब प्लस और माइनस 30 तो आ नहीं सकता, प्लस और माइनस 30 नहीं आ सकता, क्योंकि x के नॉट बी नेगेटिव है ना, x के नॉट बी नेगेटिव, सो प्लस और माइनस 30 नहीं आ सकता। तो x लेस देन 30, so revenue is increasing if x is less than 30. If what? X is less than
डन। सो कुछ भी नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, तो हमें क्या करना है, बस लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इसी में खेलना है और कुछ नहीं। ऑलराइट, बताती हूँ ना, बताती हूँ, फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है, और वो जो फॉर्मूला है वो जरूरी है, टाइम पास के लिए कुछ नहीं रहता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सब क्वेश्चंस है, उसमें से अपन एक ही सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा एक्सरसाइज, बिकॉज हर क्वेश्चन अलग अलग है, तो पूरा ही सॉल्व करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4, एंड उन्होंने बोला है एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है फिर, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, दैट इज एवरेज कॉस्ट। Average cost is given by CA is equal to C upon X. C is what? 47x plus 300x square minus x raised to 4 upon x. Okay? तो CA कितना हो गया? 47 300x minus x raised to 3 CA. है ना? This is what? Average cost. So differentiate with respect to x. dCA by dx is equal to differentiation of 47 plus 300x minus x cube. ओके, एवरेज कॉस्ट ना, एवरेज कॉस्ट क्या चाहिए हमें, इंक्रीजिंग चाहिए, तो मैंने एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया, तो एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आया, 47 का डिफरेंशिएशन 0, 300x का डिफरेंशिएशन 300 माइनस 3x स्क्वायर, कहाँ पे 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 600, सब कुछ तो सही है, 600 क्यों आएगा यहाँ पे, मैं डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर रही हूँ, अपन डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर रहे हैं, अपन डिवाइड बाय एक्स कर रहे हैं। ओके, देख लो एक बार यार, कुछ डाउट है तो बोलो। अपन डिवाइड बाय एक्स कर रहे हैं ना, सी ए इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स निकल गया, एक्स एक्स निकल गया, एक्स एक्स निकल गया, क्या बचा 47 प्लस 300x माइनस, अच्छा 4, यहाँ पे 4, एक मिनट, हाँ सही तो है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, सी, प्रॉब्लम क्या है, अगर सिर्फ कॉस्ट इज डिक्रीजिंग पूछा होता, सिर्फ कॉस्ट इज डिक्रीजिंग पूछा होता, तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग पूछने की वजह से अपन को पहले एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ा एंड फिर डीसीए बाय डीएक्स फाइंड आउट करना पड़ा। ओके, सो एवरेज कॉस्ट
is increasing. Therefore, dCA by dx is greater than 0. Okay, 300 greater than 3x square. So x square 300 upon 3. So 100 is greater than x square. X square is less than 100. So x is less than 10. X is less than what? 10. Okay. So why? Because minus 10 हो नहीं सकता ना. यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने जब लिया तो minus 10 भी तो लेना चाहिए था. But it is not possible to have number of units negative. So x cannot be less than 0. It is always greater than 0. X is always greater than 0. So x is what? We are considering what? Positive 100. Sorry, positive 10. We are not considering negative 10. Okay. We are not considering negative 10. We are considering positive 10. Okay. Done. So x is greater than 0. Therefore, we are considering positive 10. We are not considering negative 10. Okay. Any doubt? Which problem? Now, question number 7 ka second question I'm going to do. क्या बोला है उन्होंने? Find price. Find price. Marginal revenue is given to you. RM is given to you. RM is how much? Marginal revenue. Elasticity of demand is given to you, 3. Elasticity of demand is what? 3. Elasticity of demand is what? 3. Okay. Marginal revenue is 28. Elasticity of demand is 3. अब क्या हो रहा है कार्तिक? अभी तक का कुछ समझ में नहीं आया क्या? अभी तक का कुछ समझ में नहीं आया? क्या क्या किया अपन ने? या फिर बैकग्राउंड नॉइज की वजह से बोल रहा है? यस, इस वजह से बोल रहा है. तो एग्जैक्टली बैकग्राउंड नॉइज की वजह से बोल रहा है क्या? ओह ओके. अरे हाँ यार, मैं तुझे बोल रही ना, तू मुझे आईपैड गिफ्ट कर दे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? 3. फाइंड प्राइस. पी फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है. तो यस, हाउ कैन आई गेट इट? RM is equal to RA into 1 minus 1 upon eta. वन माइनस 1 अपॉन eta. तो RM कितना है मेरे पास? 28. RA कितना है पता नहीं. 1 minus eta. Eta is what? 3. Elasticity of demand. This is what? Elasticity of demand. कितना है वो? 3 है. तो सॉल्व करो इसको. 28 is equal to RA 3 minus 1 upon 3, है ना. So RA कितना हो जाएगा? 28 into 3 by 2. So average revenue is what? 42. और हमने देखा था लास्ट क्लास में, मतलब मैंने पिछली बार जब फॉर्मूला लिस्ट आउट करके बताया था तब मैंने एक चीज बताई थी कि एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट? प्राइस, है ना. सो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट? प्राइस. और वो कितना है? 42. हाउ मच इज दैट? 42. एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट? प्राइस, एंड व्हिच इज व्हाट? 42. देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे जल्दी जल्दी.
डन? यस। तो अगला क्वेश्चन बताओगे फिर मुझे कैसे सॉल्व करोगे? थर्ड वन, marginal, find elasticity of demand if marginal revenue is 50 and price is 75. Try to solve this. Tell me the answer. Elasticity of demand. नहीं, सर को नहीं पता अभी तक। सर को बताऊंगी मैं भी, परसों क्लास पे जाऊंगी तो बता दूंगी। सुबह का होता है ना। डन? कितना है आंसर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कितना है आंसर? नहीं आया किसी को? क्या है फॉर्मूला अपने पास? आर एम इज इक्वल टू आर ए इंटू 1 माइनस 1 बाई ईटा। ओके, और आर एम कितना है? 50। आर ए एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इट्स 75। 1 माइनस 1 बाई ईटा, है ना? तो 50 अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ईटा। तो कितना है? 25 2 जा 25 3 जा। So 1 minus 1 upon eta is 2 upon 3. So 1 minus 2 upon 3 is 1 upon eta. So it is 1 upon 3 is equal to 1 upon eta. So eta is equal to 3. Done. Okay, easy है, बहुत आसान है। Next. Question number 8 and 9 I am going to do. Okay. कुछ डाउट है इसमें? बताओ। इजी है, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू, बस इतना याद रखो। एवरेज रेवेन्यू, क्या हो रहा है इसको? एवरेज रेवेन्यू दैट इज आर ए इज नथिंग बट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। डिमांड फंक्शन D is equal to P plus 6 upon P minus 3. Find elasticity of demand at P is equal to 4. हाँ, yes. देखो,
डन? ओके, हाँ इसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विथ इंटीग्रेशन डेफिनेटली। 12:30 तक लेक्चर है अपना आज, 12 बजे तक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। सो डिमांड फंक्शन इज p+6/p-3। ओके, तो यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला? eta is equal to -p/d dd/dp, ना? ये फॉर्मूला है अपने पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें उसके लिए किसकी किसकी जरूरत है? हमें dd/dp लगेगा, हमें dd/dp लगेगा, हमें p लगेगा और हमें d लगेगा, है ना? हमें dd/dp लगेगा, p लगेगा और d लगेगा। तो यस, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। d इज व्हाट? p+6/p-3। नाउ डिफरेंशिएट with respect to p. Differentiate with respect to p. So dd/dp is what? Differentiation of p+6/p-c, p-3 with dp. u upon v लगाएंगे, so v du/dx minus u dv/dx upon p-3 स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? p-3 differentiation of p with dp is 1 plus differentiation of 6 is 0 minus p+6 differentiation of p is 1 minus differentiation of 3 is 0 upon differentiation of p-3 with differentiation of p-3 का स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है? अब ये क्या आ जाएगा? p-3 minus p+6 अपॉन p-3 का स्क्वायर। ओके, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना है? फिर ये p एंड माइनस p तो चले गए, है ना? फिर क्या बचा? -9 अपॉन p-3 होल स्क्वायर। एक बार चेक करो इस डिफरेंशिएशन में किसी को कोई डाउट है क्या? चेक इट आउट वंस। इस डिफरेंशिएशन में किसी को कोई डाउट है क्या? u अपॉन v रूल लगाया है मैंने डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का u अपॉन v रूल क्या होता है? यस, v du/dx minus u dv/dx upon v square। सही है? ओके, तो ये है डिफरेंशिएशन का रूल। नेक्स्ट, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय is what? Eta minus p upon d dd/dp, है ना? तो p तो वैसे ही रखेंगे, p as it is। d का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज d? p+6/p-3। ओके, p+6/p-3। dd/dp is what? ये माइनस है ना? dd/dp is what? -9 अपॉन p-3 होल स्क्वायर, है ना? तो क्या आया फिर? ये +9p, p-3 ऊपर चला गया, p+6 एंड p-3 स्क्वायर, तो ये दोनों निकल गए। तो क्या बचा फिर? 9p अपॉन p+6
इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इसका वैल्यू हमें किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, चेक इट आउट। किस पॉइंट पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एट p इज इक्वल टू 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, p इज इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा। ओके, सो एट p इज इक्वल टू 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 9 into 4 अपॉन 4 plus 6 which is equal to 36 upon 10 which is equal to 3 point। डन। चेक करो एक बार, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। पहले मैंने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के बाद मैंने डी का वैल्यू वहां पे रख दिया, फिर पी एज इट इज, फिर डी का वैल्यू रखने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। p-3 गया ना, p-3 ये ऊपर गया ना, ये देखो ये डिनोमिनेटर में p-3 था, वो ऊपर आया ना ये p-3, और यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे p-3 है, तो एक एक p-3 निकल गए, तो एक ही सॉरी अच्छा नीचे वाला p-3 बोल रहा है क्या, यस। सो 4 plus 6 and 4 minus 3 1 ही होता है वो, तो इसलिए आंसर ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। ओके डन, समझ में आई बात, कुछ डाउट है इसमें? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये सब सेम है। इनफैक्ट 12 भी अपन ने किया है, ओके उस टाइप का किया है। तो आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है। कमेंट ऑन रिजल्ट जब भी वो बोलते हैं ना, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है कि वो इलास्टिक है। तो जब भी ईटा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। ओके और कुछ नहीं। whenever they say comment on the result, you just have to write it as whenever it is greater than 0 it is what, greater than 1 it is elastic। ओके तो इस केस में वो ग्रेटर देन 1 है तो इट इज इलास्टिक। चलो 9th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लिखकर हो गया, लिखे हुआ होगा तो बताओ मुझे। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड प्राइस फॉर डिमांड फंक्शन, मतलब हमें पी फाइंड आउट करना है फॉर डिमांड फंक्शन 2p plus 3 upon 3p minus 1 when elasticity of demand is 11 by 14, when elasticity of demand is what, 11 by 14। ओके तो यस कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, -p/d dd by dp, तो मुझे सबसे पहले dd by dp चाहिए है ना। डिमांड फंक्शन क्या है मेरे पास, 2p plus 3 upon 3p minus 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, तो क्या हो जाएगा फिर, dd by dp is equal to differentiation of 2p plus 3 upon 3p minus 1 with dp। ओके तो u अपॉन v लगाएंगे, सो v इंटू du by dx रहता है ना, माइनस अपॉन, राइट ओके
अब क्या हो जाएगा 3p माइनस 1, 2p with dp 2, d3 is 0, 3p 3, 1 0 upon 3p minus 1 square. Okay, so yes, 2 into 3p 6p, 2 into minus 1 minus 2, 3 into minus 2p minus 6p minus 9 upon 3p minus 1 square. तो ये और ये तो चला गया, क्या बचा फिर अपने पास -11 अपॉन 3p माइनस 1 स्क्वायर. चेक करो डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, चेक इट आउट फास्ट. डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, देख लो एक बार. बेसिक यू अपॉन वी रूल लगाया है मैंने, v इंटू डी बाई डी एक्स प्लस सॉरी माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर. बेसिक यू अपॉन वी रूल लगाया है मैंने. ओके कोशिश करोगे आगे. यस, गिव एन अटेम्प्ट. कार्तिक क्या हो रहा है? हैंड रेज क्या कर क्या रहे तू? ओके, आया किसी को आंसर? है कोई जिसको आंसर आया? नहीं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? माइनस पी अपॉन डी, डी डी बाई डी पी, है ना. तो माइनस पी, डी इज व्हाट?
2p plus 3 upon 3p minus 1. डी बाई डी पी क्या होगा? -11 अपॉन 3p minus 1 square. So 11p 3p minus 1 upon 2p plus 3 3p minus 1 square. So elasticity of demand क्या हो जाएगा? Elasticity of demand would be 11p into 3p minus 1. Sorry, ये 3p minus 1 तो निकल जाएगा ना, तो ये बचेगा 11p 2p plus 3 3p minus 1. ओके, एक 3p minus 1 नीचे बचेगा. तो यस, फिर क्या हो जाएगा अभी आगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ इन्होंने? 11 अपॉन 14 इक्वल टू 11p अपॉन 2p प्लस 3 एंड 3p माइनस 1. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करने के बाद 11 अपॉन 14 इज इक्वल टू 11 तो चले गए यार, 11 तो चले गए है ना. यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे p बचा. फिर क्या है नीचे? 6p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 9p माइनस 3. ओके, सो क्या आया फिर? ये 1 अपॉन 14 इज इक्वल टू p अपॉन 6p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 3. इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 6p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 14p. ओके, तो कितना हुआ फिर? ये 6p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 14p माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सो 6p स्क्वायर माइनस 7p क्या हो गया रे? कहाँ पे 9p होगा? ये सही है ना? प्लस 7p हो जाएगा ना? सही तो है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मल्टीप्लीकेशन शुड बी -18, एडिशन शुड बी -7. कौन से नंबर से जिनका मल्टीप्लीकेशन -18 आता, एडिशन -7 आता? -9 + 2 है ना. तो 6p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, 3p कॉमन निकलेगा अगर, -3 प्लस 1 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 2p माइनस 3 कॉमन, 3p प्लस 1. ओके, तो 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 3/2, p इज इक्वल टू -1/3. -1/3 तो हो नहीं सकता है ना. प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 0. प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. therefore आंसर क्या हो गया? p इज इक्वल टू 3/2 इज द आंसर. चेक इट आउट फटाफट, फास्ट.
डन, यस, समझ में आया सब कुछ? कैसे आया p इज इक्वल टू 3/2? एनी डाउट इन दिस? बताओ जल्दी बताओ, डाउट है क्या? मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा अपना, सीक्वेंसिंग वाला चैप्टर। इजी है वो भी चैप्टर, आसान है। उसमें तो कुछ मैथ्स है ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब मैथमेटिक्स सच कुछ नहीं है उसमें। ये टाइम सीरीज, सीक्वेंसिंग, ये ऐसी चैप्टर्स है, मतलब जनरल कोई भी कर सकता है उसको सॉल्व। ओके डन, चलो मैं आगे। कार्तिक हो गया लिखकर? फिर बोल देता मैम ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। नहीं, उसके बाद फिर रोज रिवीजन होगा, बट इंस्टेड ऑफ 4 वीक्स 4 days पर वीक, आई विल बी टेकिंग 3 वीक्स 3 days पर वीक। ऑब्वियसली रोज रिवीजन होगा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जब तक, मतलब जो मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट ऐसा है कि M1 का अपन को पूरा रिवीजन करना है। मैट्रिसेस में ये रिडक्शन मेथड एंड वो जो एक है ना, वो एक रिवाइज कराऊंगी। और मतलब तुम्हारे फिर जो M2 का पार्ट है, हाँ रिडक्शन एंड इन्वर्जन, एंड फिर जो M2 का पार्ट है उसमें मैं रिग्रेशन डेफिनेटली, उसके बाद एन्युटी डेफिनेटली, फिर इंडेक्स नंबर्स का थोड़ा बहुत रिवीजन लेंगे। जो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये कंटेंट एक बार रिवाइज होना चाहिए। M2 का पूरा रिवीजन नहीं कराऊंगी, बट ये जो कुछ टॉपिक्स है उसका रिवीजन आई एम प्लानिंग M2 में। ओके, क्योंकि M2 अभी रिसेंटली हुआ है तो, एंड उसमें मेजोरिटी पार्ट तो कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अलग है, तो इसलिए। M1 का कैसा है ना यार, ये इंटीग्रेशन वगैरह पता है मुझे, वो थोड़ा ऑनलाइन नहीं समझ में आता अच्छे से, कनेक्ट नहीं हो पाता, वो मैं खुद कनेक्ट नहीं हो पाती स्टूडेंट से ऑनलाइन में, तो ये तो जरूरी था। M1 का तो अच्छे से रिवीजन करेंगे अपन। टेस्ट तुम बताओ, टेस्ट के लिए मैं तो रेडी हूँ। तुम लोग बताओ टेस्ट कब लूँ मैं फुल पोर्शन? तुम लोग एक कॉमन डेट दे दो मुझे, मैं तो फेब एंड में ही रेडी थी M1 का। अभी अगर टेस्ट होगा तो M1 M2 का दोनों का होगा फिर, है ना, फुल पोर्शन। क्लास में आके दोगे तो अच्छा होगा, देखते हैं अभी उस वक्त क्या सिचुएशन बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू रिवाइज द formula for integration. I'm going to leave you at 12 o'clock. Huh? Yes. नहीं नहीं नहीं, जो रिवाइज किया उस चैप्टर का टेस्ट नहीं बोल रही मैं, पूरा सिलेबस का टेस्ट बोल रही हूँ मैं, पूरे सिलेबस का टेस्ट बोल रही हूँ मैं। ओके संजना, मुझे पर्सनल पे भेज देना, ठीक है? पर्सनल पे भेज देना। मतलब क्या है, रिवाइज किया उतना ही, क्या कुछ भी बच्चे नहीं है हम अब। MPC is what, MPS is what, APC is what, APS is what? If expenditure of the person EC is given to you 0.0003 I square plus 0.075 into I when I is equal to, okay, EC is given to, हमें क्या फाइंड आउट करना है? MPC। MPC कैसे फाइंड आउट करोगे? DEC by DI। Okay, so differentiation of EC is what? 0.0003 I square plus 0.075 I with DI. Okay, with DI. डिफरेंशिएट MPC यही होता है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या हो जाएगा फिर डिफरेंशिएशन 0.0003 आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2i प्लस 0.075 कितना आया फिर ये 0.0006 आई प्लस 0.075। ऑलराइट, ओके, एनी डाउट इन दिस? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हेन i इज इक्वल टू 1000, व्हेन i इज इक्वल टू 1000 MPC is equal to 0.0006 into 1000 plus 0.075। तो 1000 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 0.6 प्लस 0.075 0.675 MPC आया। ठीक है ना, अब हमें पता है, क्या पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू व्हाट 1। ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है। तो एमपीसी कितना है 0.0675, एमपीएस कितना है, हाउ मच इज एमपीएस हमें पता नहीं है, सो एमपीएस इज इक्वल टू 1। सो एमपीएस कितना हो जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0675। एमपीएस कितना हो गया फिर, हाउ मच इज एमपीएस 0.325। कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ 675 चाहिए। एमपीएस मिल गया और एमपीसी भी मिल गया, एमपीएस भी मिल गया और एमपीसी भी मिल गया। ओके, एनी डाउट? अब एपीएस क्या होता है, एपीसी क्या होता है, सॉरी व्हाट इज एपीसी, एपीसी इज इक्वल टू, एपीसी मीन्स व्हाट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, एमपीएस एंड एमपीसी शुड नॉट एक्सीड 1, MPC and MPS should not exceed 1। ओके, तो यस ये क्या हो जाएगा फिर, EC, EC is what 0.0003 I square plus 0.075 I, okay, 0.0003 I plus 0.075 APC when I is equal to 1000। ओके, तो एपीसी क्या हो जाएगा फिर, I is what 1000 प्लस 0.075। तो अगर 1000 है तो 1 2 3 0.3 प्लस 0.075, एपीसी क्या हो जाएगा फिर 0.375। ओके, 0.375। नाउ एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, 1 होता है ना। सो एपीसी प्लस एपीएस is 1, APC is 0.375 plus APS is equal to 1। 0.375 कितना आएगा फिर APS, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बस ये बेसिक फॉर्मूला तुम लोग को याद होने चाहिए। कौन से बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट इज दिस, then this, then this and then this।
ये बेसिक फॉर्मूला सेट तुम्हें याद होने चाहिए, फिर बाकी काम आसान है और कुछ नहीं। अगले लेक्चर में स्टार्ट करना इंटीग्रेशन। बोर हो रहे हो क्या? नहीं ना, बोर तो नहीं हो रहा ना? हो रहे होंगे तो भी हाँ मत बोलो। पूछने नहीं चाहिए था मैंने। क्या बोल रही, नहीं समझ में आया मुझे। इनकम ज्यादा हो सकता है बट एक्सपेंस डेसिमल में होना चाहिए। नहीं, क्या बोल रही है, मुझे नहीं समझ में आया। दिस इज नॉट योर इनकम बेसिकली। एवरीथिंग शुड बी इन डेसिमल्स, राइट? एवरीथिंग शुड बी इन डेसिमल्स। अच्छा, आय की बात कर रही है। हाँ, आय बड़ा हो सकता है ना। बेसिकली दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन propensity to consume, मतलब एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इनकम। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ये बेसिक एनालॉजी से, आई वुड से बेसिक कॉन्सेप्ट से ये पूरे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। ईसी प्लस मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, उससे ये सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो इनकम बड़ा हो सकता है। डन, कोई डाउट, कोई शक? चले आगे फिर। इंटीग्रेशन अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने चैप्टर बाकी है अपने रिवीजन के? हैं इंटीग्रेशन बाकी है, डेफिनेट इंटीग्रल बाकी है। ओके, अगले वीक में तुम्हारा सीक्वेंसिंग इन सीरीज खत्म हो जाएगा, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। यस, हो गया। टाटा, बाय बाय।